As we know, we need to take very good care of our skin, right? But when we say taking good care of skin, usually people, general perception is taking good care of face. मुझे एक्ने है, पिंपल्स है, रिंकल्स है, पिगमेंटेशन है, अगर मैंने फेस पे सॉल्व कर दिया तो दैट्स इनफ. So why we are so much obsessed with our face care? Because face is something which represents us, right? Yes, but so do hands, right? Because whenever we shake hands or whenever we do namaste or whenever we greet people, our hands are also visible to people, and this also represents our personality. So, and even we do many things with our hands, and it gets in contact with many chemicals, heat, and even water. So they are at more damage, but still we tend to ignore to take good care of it. So. Exactly. So today what we are going to discuss कि आप अपने हाथ और पैर की hands and feet care कैसे ले सकते हो without taking much time of your daily routine. So कुछ कम छोटी से छोटी चीज, मिनिमम चीज आप डेली रूटीन में क्या कर सकते हो जिससे आपका हैंड्स एंड फीट डिसीज फ्री रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो. उसके बाद हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स है जो हैंड्स एंड फीट पे हो सकते हैं. एंड लाइक अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, डायबिटीज है, आपको क्या स्पेशल केयर, स्पेशल If you are सिचुएशन में, working. या इफ यू आर वर्किंग, आपको स्पेशल सिचुएशन में क्या केयर लेनी चाहिए, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट विल गो विद व्हाट इज रूटीन डे टू डे हैंड एंड फीट केयर. ओके. Hello everyone. हाय. Okay. So I think we should start with the routine day-to-day care. Okay. So with skin care, the first most important thing comes up to our mind is moisturizer, right? So whether it's a summer, monsoon, or whether it's rainy season, or हमारे hand dry है या it's oily, no matter what, we need to moisturize our hands, right? यस. सो बेसिकली मॉइस्चराइजर इज मस्ट. सो डे टू डे रूटीन में कितनी बार मॉइस्चराइज करना चाहिए? अगर आप यू आर हेल्दी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो ट्वाइस अ डे मॉइस्चराइजर इज जस्ट फाइन. आप एक बार नहाने के बाद मॉइस्चराइज कर दो, सोने से पहले मॉइस्चराइज कर दो, दैट इज सफिशिएंट. But there are situations where you need to moisturize your hands more frequently. Say this corona pandemic, right? So here we are, hand washing very frequently. We are using soap, we are using sanitizers so frequently. So these are ultimately these are chemicals. So they remove normal moisturization factors from our skin, and then they make it more dry, itchy, flaky. We see scaliness, we see eczema developing on Even our peeling hands. of our skin, Yeah, most peeling, of you will exactly. be having this. Exactly. So in such situation, we need to use moisturizers more frequently. In months of winter when the humidity is low, or if you're suffering from skin conditions like psoriasis, eczema, or any other conditions where you need to use moisturizers more frequently. Now, a question arises. I'm using some moisturizers. We all are taking good care of our face. I'm using some moisturizer for my face. So can I use same moisturizer for my hand? The answer is no, because requirement for face and hand is different, right? So फेस की जो स्किन रहती है, इट्स थिन और इट्स पिंपल प्रोन. उसमें पिंपल्स भी जल्दी आ सकते हैं. तो हम लोग जो फेस के लिए जो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, यूजुअली फेस मॉइस्चराइजर्स आर लाइट, दे आर कॉमेडोन, नॉन कॉमेडोजेनिक. तो उससे पिंपल्स नहीं होते, दे आर नॉन ग्रीजी, तो फेस ऑयली नहीं लगता. जबकि हमारे जो हैंड की स्किन रहती है, देट इज मोर थिक. ठीक है. तो उसके लिए मोर रिच, इंटेंस मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है. बहुत बार हैंड मॉइस्चराइजर में केराटोलाइटिक एजेंट्स रहते हैं जो थिक स्किन बिल्डअप प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं, लाइक सैलिसिलिक एसिड, यूरिया, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक Lactic एसिड. acid. यस, ये सब चीजें उसमें यूज होती है. बहुत बार हैंड्स एंड फिट के लिए स्पेशल मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर भी आते हैं जो आपकी स्पेशल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं. सो दिस दैट इज हाउ हैंड मॉइस्चराइजर आर डिफरेंट from face moisturizer. So even moisturizer are needed for feet as Yeah, well, right? actually, so we talked about hand, but also our feet need moisturizer. Like in especially in winters और अभी जब भी आपको cracked feet है, तो उसके लिए भी you need to moisturize. और आप उसके लिए ये कर सकते हो कि आप अपने पैरों पे thick layer of moisturizer, especially containing urea, आप उसको लगा के cotton socks पहन लो, overnight रखो, उससे आपके पैर ज्यादा अच्छे रहते हैं और एकदम softer होते हैं. So Exactly. that you can do also. Exactly. See, now our face is exposed to sun, so we are using sunscreen for our face. So our hands and feet are also exposed to sun. So what sun exposure causes to our hands and feet? Pigmentation problems like tanning. You must have seen those, unsightly
footmark tanning lines, and then they also causes faster aging, wrinkles fast develop hoti hai, and then sometimes for few sensitive people it also causes allergy, itching, and वो सब प्रॉब्लम होते हैं। तो जैसे आप फेस पे सनस्क्रीन यूज करते हैं, वैसे हैंड्स एंड फीट पे भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। सो आपका जो एजिंग वगैरह हैंड्स एंड फीट का रहेगा वो स्लो होगा, वहां पे रिंकल्स वगैरह कम आएंगी। इंडियन सिनारियो में एटलीस्ट मिनिमम 30 SPF sunscreen is required because India is a tropic country. 30 or more SPF sunscreen is required. Second thing, sunscreen should be used repeatedly. It's not that you have applied sunscreen once in a morning, then it will go entire day. No, it's not like that. अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही हेक्टिक है, आप आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करते हो, सो मॉर्निंग में अगर आपने एक बार सनस्क्रीन लगाया है, सो आपको एक बार 3 hours के बाद वापस रिपीट भी करना चाहिए। Yes, and after the importance of moisturizer and sunscreen, we should also talk about soap because आजकल के सिनारियो में कैसा रहता है कि हम बहुत ही बार हैंड वॉश करते हैं, तो कौन सा सोप यूज करना चाहिए, और स्पेशली कोरोना सिचुएशन में इस एंटी बैक्टीरियल सोप इज रिक्वायर्ड। So I would say it does not give any extra benefit. Normal soap या antibacterial soap both same ही work करते हैं if आप proper टेक्निक से हैंड वॉश करो। और इसमें क्या रहता है कि जो नॉर्मल सोप जो आप ज्यादा बार हैंड वॉश करते हो तो उससे ड्राइनेस ज्यादा होती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्किन फ्रेंडली पीएच वाले सोप होते हैं, जैसे कि स्किन का पीएच 5.5 रहता है वो, या तो फिर न्यूट्रल पीएच वाले 7 वाले, वो आप यूज करो। और स्पेशली उसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट वाले जो सोप रहते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन है, एलोवेरा है, वो सब एडेड रहता है। तो आप उसको यूज करोगे तो आपके हैंड्स कम ड्राई होंगे, और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज करो। और अगर फिर भी आपको एलर्जी वगैरह कुछ होता है तो देन यू नीड सम कंसल्टेशन, अदरवाइज दिस थिंग्स आर वेरी प्रोटेक्टिव। Okay. So now coming to the most important point are nails. Okay. So nails में अगर आप just one more thing, even after soap, detergent और डिश वॉशिंग सोप भी आजकल सब लोग ज्यादा यूज कर रहे होंगे। सो ये भी ज्यादा हार्श रहते हैं हमारे स्किन पे। सो इसके लिए आपको ये करना है कि आप ग्लव्स पहन के कुछ भी काम करो, जैसे कि आप कपड़े वॉश कर रहे हो या डिश वॉश कर रहे हो, तो आपके हैंड्स ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। Yes, just I'm taking a break in between. Mr. Parth Shah is asking few questions. Definitely, I would love to answer. Question is about diet and hands and feet care and silicone-based socks. Definitely, I would cover it a little bit later when we are coming to the topic. So, Parth, stay tuned. We are going to answer your questions. So now the important thing is nail, taking care of nail. So see, as you can see, can you see it here? So nail is protected by skin from 3 sides. These are called nail folds. Okay. So basically, ये जो nail folds रहते हैं, they are natural seal. They are protecting from external harmful chemicals, water, bacteria, fungi from entering inside. सो अभी क्या होता है, अगर किसी को नेल बाइटिंग हैबिट्स रहती है, या तो हम लोग डिटर्जेंट पानी के साथ ज्यादा काम करते हैं, पर्टिकुलर हाउसवाइफ्स आर मोर ससेप्टेबल हियर, या फिर मैनिक्योर टेक्निक्स अगर गलत रहती है, तो ये सब चीजों में ये नेल फोल्ड्स डैमेज होते हैं, ट्रॉमा होता है, तो उनका जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है वो नहीं रहता। तो उस किस्म में उस प्रॉब्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमको? फर्स्ट थिंग इज इन्फेक्शन, बहुत बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। दूसरी चीज, अगर हम लोग नेल्स को इधर कोने में, साइड में, इधर और इधर, अगर हम लोग नेल बाइटिंग करते हैं या बहुत ही अंदर तक जाके अगर नेल को काटते हैं हम लोग, तो ये जो शार्प एंड रहता है वो साइड के नेल फोल्ड्स में अंदर एंटर हो जाता है, उसको इनग्रोइंग नेल भी बोलते हैं। तो इनग्रोइंग नेल और इन्फेक्शन, जिसको पेरोनाइकिया बोलते हैं, तो मेडिकल टर्म्स है, यू डोंट नीड टू नो अबाउट इट, बट ये दोनों कंडीशंस बहुत ही पेनफुल रहती है। उसमें ये जो रहता है वो एरिया रेड एंड स्वॉलन हो जाता है, कभी कभी उसके अंदर से पस भी आता है। सो ये कंडीशन में आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस लेनी पड़ सकती है, कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ मेडिसिन लगते हैं, कभी कभी एक माइनर सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप अगर डिटर्जेंट के साथ या पानी के साथ काम करते हो तो आप प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहन सकते हो। नेल बाइटिंग इज नेवर अ गुड हैबिट। आप अगर नेल कट करते हो तो साइड से ज्यादा ट्रिम मत करिए, उसको प्रॉपर स्ट्रेट रखिए। मतलब पर्टिकुलरली दिस हैपेंस मोर इन सी, जो इनग्रोइंग रहता है वो पैर के नाखून में ज्यादा होता है, और जो पेरोनाइकिया डिटर्जेंट डैमेज रहता है वो हाथ के नाखून में ज्यादा होता है। तो प्रॉपर नेल कटिंग टेक्निक भी होनी चाहिए।
मैनिक्योर के और पेडिक्योर में क्या ध्यान रखना चाहिए वो डॉक्टर उर्वी अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद। और नेल कटिंग में आपको हैंड्स में ये ध्यान रखना है कि हमारे नेल्स में एक लाइन रहती है जो हमारे स्किन और नेल को अलग करती है, तो डोंट गो बियॉन्ड इट। उससे अंदर तक काटोगे तो उसके लिए उसकी वजह से आपको स्किन को हार्म होगा। और लेग के जो नेल्स है उसको स्ट्रेट कट करना चाहिए सो दैट उसके कॉर्नर्स जो है अंदर तक ना चले जाए, तो ये इनग्रोइंग को प्रिवेंट करता है। उसके बाद आती है मैनिक्योर और पेडिक्योर की बात। तो कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए? आई वुड सजेस्ट 2 to 3 मंथली आप करा सकते हो, बट उसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप जहाँ पे भी कराते हो वो सलून आपका ट्रस्टेड होना चाहिए, या तो फिर वो पर्सन आपका ट्रस्टेड होना चाहिए, और वो ग्लव्स पहन के काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। उससे आप इन्फेक्शंस प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे कि बैक्टीरियल वायरल वॉर्ड्स वगैरह वो सब प्रिवेंट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि वो लोग आपको पता रहेगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो लोग उसको काटते हैं, तो उसको क्यूटिकल्स बोलते हैं। क्यूटिकल्स इज प्रिवेंटिव स्किन सराउंडिंग टू द नील, सो उसको डीप तक काटना नहीं चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा स्किन है वहां पे तो उसको जेंटली, जब भी आपके नेल्स थोड़े सॉफ्टन रहते हैं आफ्टर उसको सोकिंग इन द वाटर, तो उसको थोड़ा पुश बैक करना चाहिए, जिससे आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर उसको कट नहीं करना चाहिए, उसको कट करोगे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको ये दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा आप ये सब चीजें घर पे भी कर सकते हो, जैसे कि आपके पैर में क्रैक्ड फीट की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा थिक स्किन है आपके पैरों की, तो आप थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा माइल्ड क्लींजर जैसे कि माइल्ड शैम्पू वगैरह डाल के 15-20 मिनट तक आप अपने लेग्स को सोक कर सकते हो। उसकी वजह से जो डेड स्किन रहती है वो थोड़ी सॉफ्टन हो जाएगी। उसके बाद आप माइल्ड स्क्रबर से उसको स्क्रैप ऑफ करो तो डेड स्किन निकल जाएगी। और उसके बाद आप थिक जो यूरिया बेस या जो भी मॉइस्चराइजर होते हैं उनको लगा के सॉक्स पहन लो, तो उससे आपके पैर ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं। और दूसरी एक चीज है कि नेल पॉलिश का यूज आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत ज्यादा जैसे कि ऑल द टाइम डोंट कीप नेल पॉलिश ऑन योर नेल्स। उससे वंस इन अ वाइल उसको नेल को क्लीन भी रखा करो। और स्पेशली जो आर्टिफिशियल नेल जैसे कि जो जेल नेल पॉलिश होती है और ग्लिटर वाली नेल पॉलिश होती है, वो नेल्स और उसके सराउंडिंग स्किन में ज्यादा स्टिक कर जाती है, तो उसको निकालते समय ज्यादा डैमेज होता है, तो वो हो सके उतना अवॉइड किया करो। Yes. And thank you, Naman, for your kind comments. And there is या a very good question by Mr. Ram. Please suggest how to take care of feet during monsoon. So, rather, I would like to discuss how to take care of your hands and feet during and different seasons, like what you should take care in during winter, during summers, and during monsoon. So, let's discuss about it. So, basically, during winter, there is very low moisture in environment. There is very low humidity. So your hands and feet are more susceptible towards dryness, allergies, eczema. जो हम हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं skin फट गई. Basically, that is what happens when our skin becomes dry. It loses its elasticity, and there are micro cracks happens in our skin. So उसके थ्रू बहुत सारे एलर्जेंस वगैरह स्किन में एंटर कर सकते हैं that can cause allergies, itchiness and everything. So prevent all those things happening to your hands and feet. You need to use a very good, rich, intense moisturizer for your hands. They are moisturizers containing urea and all, whites of paraffin. और उसको आप फ्रीक्वेंटली लगाओ। पर्टिकुलरली जैसे डॉक्टर उर्वी हैज सेड कि रात को जब आप सोते हो तो आप मॉइस्चराइजर लगा के आप सॉक्स पहन सकते हो ड्यूरिंग विंटर्स। So अभी summers में there are different problems. Summers are hot in Ahmedabad. So Ahmedabad summers are very hot. So बहुत सारा perspiration होता है, पैर गीले हो जाते हैं, तो उसके कारण फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलर फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं, those fungal infections are very common in web spaces. Web spaces मतलब दो फिंगर के बीच में जो जगह रहती है, particularly fungal infections are very common in foot. Okay, so how can you prevent this और infection? हाँ, उसमें मतलब वाइट 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 आपकी Yes. स्किन हो जाती है, तो उससे आपको पता चलेगा कि इट इज फंगल बहुत इन्फेक्शन। बार स्केलीनेस भी आती है, तो फंगल इन्फेक्शंस बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है हैंड्स एंड फीट में। तो इट्स नॉट दैट वाइटनेस होती है, स्केलीनेस होती है, कभी कभी रेड होता है, कभी ब्लैक भी हो जाती है, लेकिन वन थिंग इज वेरी कॉमन, वहां पे पेन एंड ईचिंग होता है। तो ऐसा कुछ भी होता है तो अगेन यू नीड टू सीक स्पेशलिस्ट एडवाइस। बट नहीं हो उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग, समर्स में आपको थिक कॉटन सॉक्स पहनने हैं अगर आप शूज पहनते हो तो। अगर सॉक्स गीले हो जाते हैं तो आपको उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, बराबर। आप ऐसे एंटी फंगल वाले पाउडर्स भी अवेलेबल हैं, आप उसको डाल सकते हो अपने शूज में, सो वो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और उससे भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। अभी हम लोग जब हैंड्स एंड फीट पर्सपिरेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको वो नर्वस होते हैं, या कभी कभी बच्चे रहते हैं वो एग्जाम्स लिखते हैं तो उसको उनके हाथ में से बहुत पसीना होता है, मतलब कागज गीला हो जाता है, हाथ स्लिपरी होते हैं।
बहुत बार वो एम्बेरेसिंग भी हो जाता है, या क्योंकि आपके इवन हाथ, स्मेली फिट हो या जाता है स्मेली तो। होता है, वो भी एम्बेरेसिंग है। और हम्म। कभी कभी हाथ, आपके हाथ इतने परस्पायर करते हैं कि इफ यू वांट टू शेक हैंड विद समवन, देन आल्सो इट्स एम्बेरेसिंग। सो perspiration, excess perspiration can be embarrassing many times. So अगर ज्यादा होता है, मतलब आप रूटीन मेजर से ट्रीट नहीं कर सकते, तो उसके भी मेजर्स रहते हैं, जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट या आइंडोफोरेसिस या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटमेंट अवेलेबल। सो उससे आप उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हो उसके लिए। So that is what is something about summer care. And then comes the monsoons, which question was asked by Mr. Ram. So monsoon में क्या होता है? Again, it's same as summer कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाता है। लेकिन इधर एक और चीज भी होती है कि कभी कभी वाटर लॉगिंग होता है, हमको उसके थ्रू चल के जाना पड़ता है, हमारे शूज गीले हो जाते हैं, हमारे सॉक्स गीले हो जाते हैं। तो अगर पैर ज्यादा टाइम गीला रहे तो उसमें इन्फेक्शन एंड एलर्जी, क्योंकि ये जो वाटर रहता है दैट इज नॉट हाइजेनिक, डर्टी रहता है, उसमें बहुत सारे एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट भी रहते हैं। तो ये सब चीजें एलर्जी कर सकती है, इन्फेक्शन कर सकती है। तो आपको कभी भी गीला पैर नहीं रखना है। आप अगर ऐसे एनवायरमेंट में, अगर ऐसे माहौल में आपको कुछ जाना पड़ सकता है, तो आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज रखिए, एक नैपकिन रख सकते हैं अपने पास। अगर ऑफिस गए तुरंत ही आप अपने शूज निकाल दीजिए, अपने पैर को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। अगेन आप एंटी फंगल पाउडर का यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी पैर को आपको गीला नहीं रखना है। और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस मानसून में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम्म। तो वो ध्यान रखना है आपको। So यस। even footwear, choice of footwear is important. I think Dr. Ubi would like to discuss about या footwear. सो स्पेशली ये जो उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स हमेशा रखना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा एक और भी चीज है कि फुटवेयर, इल फिटेड फुटवेयर, मतलब कि जो आगे से टेपरिंग एंड वाले शूज होते हैं या बहुत ज्यादा टाइट होते हैं जिससे हमारे पैरों में दर्द होता है या चुभता है, तो वो सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें हो सके उतना कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना चाहिए। उससे क्या होता है कि जहाँ पे ज्यादा प्रेशर आता है उसकी वजह से वहां की स्किन को डैमेज होता है, वहां पे स्किन थिक हो जाती है, वो वेरी वेरी पेनफुल हो जाती है। तो उसको हम कैलोसिटी या कॉन बोलते हैं। तो वो पैरों के साइड में, उंगलियों के बीच में या तो फिर साइड्स में भी हो सकता Particularly है। pressure points, जहाँ या पे एग्जैक्टली, pressure points आते प्रेशर हैं। पॉइंट्स पे ये सब रहता है। तो उसके लिए हमें खास फुटवेयर ऐसे चूज करने चाहिए। और मॉनसून वगैरह में इफ यू कैन अवॉइड शूज तो आप नॉर्मल स्लीपर्स वगैरह भी इफ यू कैन वेयर। और उसके अलावा एक और भी चीज है कि जो कॉर्न कैलोसिटी जैसे दिखती है वो है वायरल बॉट्स, जो जिसको चेपी मसा मसे बोलते हैं। तो दैट इज वेरी कॉन्टाजियस, वो इन्फेक्शियस होता है और एक से दूसरे को बढ़ता है। मतलब आपसे किसी और को चेप लग सकता है, आपको भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो कभी भी आपको कुछ ऐसा होता है तो यू मस्ट कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इमीडिएटली, बिकॉज इसको तुरंत ही रिमूव करवाना जरूरी है। और इसको अवॉइड करने के लिए एक और भी चीज है, आप किसी और के फुटवेयर ना पहने, खुले पैर कहीं पे ना जाइए, क्योंकि कभी भी खुले पैर जाते हो तो ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और किसी और के फुटवेयर पहनते हो तो उससे भी इन्फेक्शन लगता है। तो ये सब चीजें आप अवॉइड करें, और कुछ भी आपको ऐसे पैरों में दिखता है तो तुरंत ही कंसल्ट करिए। Yes, I would like to add one extra point here. So ये जो भी कॉन्स एंड कैलोसिटी की बात हुई, वॉट्स की बात हुई, सो मार्केट में ओवर द काउंटर कॉन कैप्स मिलते हैं। मतलब वो एक बैंडेज जैसा होता है राउंड, जो आप उसके ऊपर लगा दो और इट इज से इट उससे वो ठीक हो जाता है। बट इट डजंट हैपन लाइक दैट। वो जो बैंडेज रहते हैं उसके अंदर एसिड रहता है, मोस्टली सैलिसिलिक एसिड रहता है। तो जब आप उसको वहां पे लगाते हो तो वो स्किन को डिसॉल्व करता है, दैट इज हाउ इट क्योर्स। बट एक्चुअली होता क्या है कि जो आप जब कॉन और कैलोसिटी और वॉट्स की बात करते हो, तो वो जितना सरफेस पे दिखते हैं, मान लो कि सरफेस पे जितना आपको दिखते हैं, उससे वो ज्यादा डेप्थ में रहते हैं। तो जब आप ये ऑन केप यूज करते हो, वो सरफेस पे ज्यादा डैमेज करता है और डेप्थ पे जाता नहीं है। सो बहुत बार क्या रहता है कि वहाँ पे इरिटेशन, पेन, इन्फेक्शन होता है, और कौन वही का वही रहता है। तो बहुत बार जैसे पेशेंट कॉन केप लगा के हमारे पास आता है, तो हमको थोड़ा उसको एलर्जी और वो सब पहले कंट्रोल करना पड़ता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो थोड़ा ट्रबल बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में होम केयर इज नॉट एडवाइजेबल। आप प्रिवेंट कैसे करो? अच्छे फुटवेयर पहन के, किसी के फुटवेयर शेयर ना करके, सॉफ्ट फुटवेयर यूज करके। लेकिन अगर हो जाता है तो लेजर ट्रीटमेंट रहती है, इलेक्ट्रोपोर्टी ट्रीटमेंट रहती है, दोस आर द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल, जिसमें आपको पेनलेस के अंदर लोकल एनेस्थेसिया होता है। दो दे आर माइनर सर्जरीज, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ये करा सकते हो। दोस आर वेरी सेफ ट्रीटमेंट, और उसके बाद हीलिंग भी बहुत फास्ट होती है। सेकेंड थिंग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फुटवेयर कब चेंज करने चाहिए। आप अपने फुटवेयर को मंथली बेसिस पे आप ऑब्जर्व किया करो। जब भी आपको लगे, जब आपने नया फुटवेयर लिया रहता है तो उसका जो इंसोल रहता है दैट इज फ्लैट,
जब आपको लगे कि कहीं कहीं उसमें डेंट होने लगते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है आपके पैर का, ठीक है, और जहां पे वो उसका जो फोम रहता है वो प्रेस हो जाता है, देन इट्स नो लॉन्गर प्रोटेक्टिव फॉर योर फुट। ओके, उस टाइम पे आपको फुटवेयर चेंज कर देना है। अदरवाइज आपको वहां पे कॉन्स, कैलोसिटी और ये सब पेनफुल प्रॉब्लम्स, जो बम्प्स बम्प्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो हो सकते हैं। एंड स्पेशली किसी किसी को फ्लैट फुट की तकलीफ होती है, मतलब कि जिनके पैर स्ट्रेट होते हैं, जो बीच में गड्ढा होना चाहिए वो नहीं होता, तो उसकी वजह से भी ये सब चीजों का चांसेस एग्जैक्टली, ज्यादा हो जाता है। तो एग्जैक्टली। आप उसमें ये कर सकते हो कि जब भी आप गीले पैर चलते हो तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पूरे पैरों की छाप पड़ती है जमीन पे, तो दैट इज इंडिकेटिव कि आपको फ्लैट फुट है। तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर को, और उसके लिए स्पेशल फुटवेयर आते हैं, तो यू शुड वेयर दैट, क्योंकि वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर को भी हार्म नहीं करने देता, आपके जॉइंट्स को भी सेव करता है, और उसके साथ ही आपको कॉन्स वगैरह के चांसेस भी कम हो जाते हैं। So you can always discuss. There are so many things about footwear, which kind of footwear is right from you, for you. You can always discuss with your dermatologist if you are suffering from any this kind of foot conditions, because many of the skin problems are preventable if you know it beforehand. So you should always ask your doctor कि कैसे हुआ, अब मैं इसको कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट, इवन इन डायबिटिक पीपल। यस यस एग्जैक्टली। यस। सो डायबिटीज में भी बहुत सारी चीजें प्रिवेंटेबल है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है और लॉन्ग टर्म है, अगर कंट्रोल अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो क्या होता है कि जो पैरों में जो नसें रहती है, जिसको नर्व्स बोलते हैं, जो सेंसेशंस ले जाती है, जिससे पता चलता है वहां पे कोई चोट लगी है, कुछ पेन होता है, कांटा चुभा है, कुछ भी है, वो वीक हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू कैरी सेंसेशंस वेरी इफेक्टिवली। सो क्या होता है उस केस में कि अगर उनको कुछ चोट लगती है, कुछ भी रहता है, तो पता नहीं चलता जब तक वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, वहां पे इन्फेक्शन बहुत फैल जाता है, ठीक है। तो जिनको डायबिटीज है, जिनको नर्व डिसऑर्डर्स है, जिनकी एज ज्यादा है, तो उनको हमेशा प्रोटेक्टिव फुटवेयर पहनने हैं, जिसमें जिसका जो सोल रहता है वो सॉफ्ट रहता है, एमसीआर रबर बोलते हैं उसका रहता है, उसके जो टोज रहते हैं आगे से वो एक्सपोज नहीं है, वो कवर होने चाहिए, जिससे उनको इनएडवर्टली कहीं पे ठोकर ना लग जाए, कुछ चोट ना लग जाए। और उनको रात को एक बार, भले पेन ना हो, एक बार पूरे फीट का एग्जामिन कर लेना चाहिए कि वो ठीक से है, कहाँ पे कोई चोट लगी है कि नहीं, उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर वो लेटर स्टेज में जब उनको पता चलेगा, बहुत बार कैसा होता है, बहुत लेट हो जाता है। सेकंड थिंग, एल्डरली की जब बात कर रहे हैं, And especially in diabetic people, they should also take care while cutting their nails, because एग्जैक्टली, जब यस, सेंसेशन नहीं होते तो नेल्स कट करते टाइम भी चोट लग हाँ, जाती दे है, कैन कॉज और ट्रॉमा। उनको हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, तो चोट ना लगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो सेकंड थिंग, जब हम लोग डायबिटीज की बात कर रहे हैं, दिस आर प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली। तो जब हमारी एज बढ़ती है, जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स का फंक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, वैसे स्किन का फंक्शन भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो स्किन का फंक्शन है एक मॉइस्चराइजिंग, तो उनका स्किन थिन होता है। जैसे हमारी स्किन थोड़ी थिक रहती है, जैसे एज बढ़ती है तब स्किन थिन होती है, उसकी मॉइस्चराइजर रिटेनिंग कैपेसिटी भी कम होती है, उनकी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम होती है। उनके कारण दे आर मोर ससेप्टेबल टू ड्राइनेस, एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस। तो जिनकी एज ज्यादा है, हु आर 55-60 प्लस, उनको हाथ का अच्छा मॉइस्चर, हाथ और पैर दोनों का डेली रूटीन में ज्यादा फ्रिक्वेंटली एंड गुड इंटेंस मॉइस्चराइजर उनको यूज करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे बच्चों में भी आई थिंक डॉक्टर उर्वी वुड लाइक टू शेयर या समथिंग अबाउट हाउ एक्चुअली टू टेक केयर। या बच्चों में कैसा रहता है कि आपको उनके उनका स्ट्रेस लेवल क्या है वो आपको कुछ हैबिट से पता चलता है, जैसे कि नील बाइटिंग करते हैं, या तो फिर उनको बहुत ज्यादा पसीना रहता है जैसे कि उन्होंने बताया। तो ये सब चीजें हैं कि जो इनडायरेक्टली आपको बताती है कि दे आर इन वेरी स्ट्रेस। हमको लगता है कि बच्चों को क्या स्ट्रेस रहेगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। So whenever you see this things in your child, so you should really take care of them and you should talk to them, because this is the earliest and most common signs in them. So you can आपको पता चलेगा कि उनको कुछ बात का प्रॉब्लम है, तो you can always talk with them. सेकंड थिंग, बच्चों में स्किन ज्यादा सेंसिटिव रहती है, सो यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू यूज इन योर किड्स, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रायल एंड एरर इन किड्स। So you need to know the perfect product for your kids depending on his or her problem or his or her skin type. But yeah, kids also need a good care of hands and feet. Okay. So now we would like to take. There's so many questions being asked. Maybe you asked about you want suggestion for corn on food. Okay. So basically, first you need to confirm the diagnosis whether it's corn or what. Both are very similar looking. कॉन इज समथिंग विच हैपेंस बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल प्रेशर ऑन सर्टेन पॉइंट। कोई जगह पे अगर फुट पे प्रेशर ज्यादा आता है,
आपको कैसे पता चलेगा प्रेशर ज्यादा आता है? अगर आपका जो चप्पल या कुछ शूज या सैंडल जो भी लंबे टाइम से आप पहन रहे हो, जहाँ पे कौन हो रहा है वहां पे डिप्रेशन आ जाएगा। अगर वैसी जगह पे है तो उसको कौन बोलेंगे। बहुत बार वायरल इन्फेक्शन भी होता है जिसको वॉट बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंशिएट करना रहता है। कॉन एंड वॉट दोनों काफी डीप तक जा सकते हैं, बहुत बार वो 1 सेंटीमीटर डीप भी रहता है। सो निवी, द बेस्ट सजेशन आई वुड से, डोंट अप्लाई कॉन कैप। उसके कारण आजू बाजू की स्किन जल जाएगी, उसमें इन्फेक्शन इरिटेशन होगा। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनके पास उसका सजेशन लीजिए, और बहुत बार मोस्ट प्रोबेबल ट्रीटमेंट वुड बी उसको माइनर सर्जरी से निकाल देना है और फिर प्रॉपर फुटवेयर लेना है। अभी आई वुड, हाँ, you would like to Yeah, add something? yeah, no, no, I was just answering one of the question. Is it finished? Yeah, yeah, sure. Yeah. Okay, so Mr. Ankit was asking, is it a good thing? I mean, you can take foot massages in salons. So I explained you earlier about manicure and pedicure. So same thing applies here. कि सलून में आप जब भी जा रहे हो, इट शुड बी ट्रस्टेड, आप मसाज ले सकते हो, इट इज वेरी रिलैक्सिंग, बट द ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर, दे वेयर gloves because they massage many clients, so it is very high risk to transmit viral infection or bacterial infection from one person to another. So you can take massages, no problem, but just make sure they are wearing gloves. And Mr. Parth asked initially us, is there any role of diet in hands and foot care? Yeah, definitely. See, firstly, diet, good diet is very, very important for health of your skin. So, particularly diet directly affecting hands and feet skin is nothing like that. But you need to take very good diet, diet rich in proteins, vitamins, minerals, and it will, result in generalized, good, moisturized, healthy, glowing skin. So it's not in particularly about hand, it's particularly about skin of entire body that good diet helps. And the second question he asked was whether we should use this silicone socks something for crack fits. No, silicone socks are not for crack fits. Probably they are for corn and callosities, which are frequently developing, or few patients who are having plantar fasciitis, chronic pain, जिनको पैर के तलवों पे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जो सिलिकॉन जो इंसोल्स रहते हैं बेसिकली, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करते हैं। तो जिनको अगर फ्रिक्वेंटली कहीं पे अगर कॉर्न और कैरोसिड डेवलप हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं। जैसे वन टेक्निक इज इंसोल होल। तो जहां पे आपको प्रेशर ज्यादा आ रहा है, वहां पे आपको एक छोटा सा होल क्रिएट कर देते हैं और वहां से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या तो वहां पे हम लोग सिलिकॉन, ये जो सॉक या आप जो बोल रहे हो एक इंसोल रखते हैं। दैट इज लिटिल एडवांस थिंग, जो जिनको पर्टिकुलरली इंडिविजुअल नीड रहती है उनके लिए ये चीज जरूरी होती है। So it's not basically for crack fit. Crack fit को moisturizer, keratolytic agents, particularly urea 40% is a very good moisturizer for crack fit that you can use. And even in diet, I would like to add omega-3 fatty acid rich Yes. food are very important, like dry fruits, walnuts, almonds, and even flax seeds. Few seeds are very rich in omega-3 fatty acid. So they are also moisturizing and they are very good for skin. Particularly, they are very helpful for crack fit. Omega-3 Yeah, fatty yeah. acid, very helpful for crack fit. Linolenic acid. Any dry skin condition, Yeah. even if you have atopic dermatitis or eczema, anything. Yes. And Naman, Mr. Naman asked one of his friends having acne on face, which comes and goes. And see, Naman, this we are restricting this topic for hands and feet care. But definitely, I would like to add, yeah, acne are like that, which comes and goes. There are many reasons. Probably hormonal imbalance causes acne, and dandruff on your head causes acne, and probably diet causes acne. So basically, we need to know why he's having frequent breakouts of pimples, whether he's okay, like whether he's regular with medicines or not. There's so many causes of recurrent acne that we need to look into, and then probably we can find a solution for him. So are we left out with any Yeah. questions? Yeah. Moisturizer. Should I consult a dermatologist for moisturizer for my skin type? See, basically, for hands and feet, there are not many different skin types. So, if you are a routine person who just want to, take care of your hands on day-to-day regular basis, then no, you don't need to consult a dermatologist. Even plain coconut oil, if you're comfortable, or plain pipes of paraffin, or any, good moisturizer like
Venusia or Aquaria HF. You can use those routine over-the-counter moisturizer. You don't need a special moisturizer for that. You moisturize your hand in morning. You moisturize your hand in before going to bed. That is more than enough. But if you are having psoriasis, if you are having eczema, if you are having special condition, then definitely a dermatologist may find you a suitable moisturizer which is best suited for your skin type, and that will go a long way in treating your skin condition. So, are we left with any questions? I mean, would you want to ask anything? Hope Parth, I solved your queries. I answered your question at last, but hope it has been solved. And thank you, everyone, for your comments. Maulin sir, thank you. And Yeah, Naman, thank you, thank you Maulin for your sir. appreciation. Thank you very much, Maulin Yes. sir. Anyone else want to ask something? Hands, feet, or anything? Yes. So we would just, in the end, we would just like to say hands and feet are most ignored parts. So just take few minutes out and take little bit care. So it is enough. You don't need to do Yes, much you about don't it. need to spend so much of time. Like probably 1/10 of the time you spend Yeah. for your face, that is enough for your hands It's and just feet. about developing a habit, and I know we all tend to ignore it, but we can do that. Yes, exactly. Okay, then we would like to end the session if all the queries of yours are solved. Thank you very Thank you much. everyone for You are a joining. wonderful audience. You asked so many questions, and it was really wonderful to solve those queries. Thank you very Yes, much. and for such more tips, you can always follow us on Facebook or Instagram, and we are always there. We can Yeah, answer you there. one last question Mr. Nilesh asked, what are treatment options for deep cracks? Actually, these deep cracks are kind of keratoderma. So, to be very frank, there are no treatment available कि एक बार आपका treatment हो गया लाइफ में पूरी लाइफ क्रैक फिट नहीं होगा ऐसा नहीं पॉसिबल है बिकॉज इट्स अ keratoderma but definitely you can have your fit without cracks कुछ केयर लेनी चाहिए सो व्हाट आर ट्रीटमेंट ऑप्शन बेसिकली उसमें कुछ सर्जरी नहीं जरूरत है कुछ भी नहीं है यूज अ गुड मॉइस्चराइजर urea 40% is a very good moisturizer here even if your moisturizer contains lactic acid salicylic acid those keratolytic agents so वो जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको डिसॉल्व करेगा आपको अगर वहां पे इचिंग हो रही है इन्फ्लेमेशन हो रहा है सो डर्मेटोलॉजिस्ट कैन प्रिस्क्राइब फ्यू स्पेशलाइज्ड क्रीम वो आप अपने आप नहीं लगा सकते Aqualia HF is a good या 40% urea यस यस moisturizer. दैट इज गुड वो आप मॉइस्चराइजर आप घर पे यूज कर सकते हो दूसरा डॉक्टर उर्वी ने जैसे बताया आप अपने पैर को वाटर में सॉक करके रख सकते हो उसको जेंटली स्क्रब कर सकते हो नॉट टू मच जेंटली स्क्रब कर सकते हो आप उसको और उसको स्टार्टिंग में एक बार अगर हील हो गया है उसके बाद मॉइस्चराइजर के साथ उसको मेंटेन करना है तो डेफिनेटली आप अपने क्रैक फिट को ऐसे मेंटेन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ मॉइस्चराइजर एंड सर्टेन क्रीम्स And you should always be gentle with your skin. Don't be vigorous. Don't do anything very harshly. Just be gentle. Scrap off only dead skin. Otherwise, you will end up with any other problems. But silicone socks won't help you for cracked fit. Moisturizer will help you there. Cracked fit, silicone socks are probably more used for callosities and feet pain problems. When they are used for proper indication, but not for cracked fit. Okay, so can we end the session now? Yeah, I think all the queries are solved, I guess. Okay, thank you, Parth. And thank you everyone for joining and listening to us. Yes, thank It you was very much. very interactive and very good session. Thank you. Thank you.